عید Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. ہر سال دنیا میں 2 ملین مسلمان اپنا سب سے بڑا فیسٹیول عید مناتے ہیں، جس میں دنیا کے 57 دیش بند ہو جاتے ہیں۔ مطلب ان ساری کنٹریز میں اسکول، بزنس سب کچھ بند ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈر اس دن کی مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ ان سب کا وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں یہ سب صرف اور صرف ایک انسان کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر اور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام اجر تھا، جو بت بناتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چھوٹی عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یہ پتھر کے بت کیسے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے جو خود بھی ہل نہیں سکتا؟ کیا تم ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ لیکن قوم نے کہا، یہ سب ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتے، کہتے، میرے والد، مجھے وہ علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے چلوں گا۔ میرے والد، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، کیونکہ شیطان رب کا نافرمان ہے۔ میرے والد، مجھے خوف ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ ان کے والد نے غصے میں کہا، اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تم مجھ سے دور چلا جا اور کبھی نظر نہ آنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، آپ پہ سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے بخشش کا طلب کرتا رہوں گا۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھانے کے لیے اس سٹی کے ایک ٹیمپل کے اندر گئے اور ایک کلہاڑی سے سبھی بتوں کو توڑ دیے سوائے سب سے بڑی بت کے۔ پھر اس کلہاڑی کو سب سے بڑی بتوں کے اوپر رکھ کر وہاں سے چل دیے۔ جب اس شہر کے لوگوں نے یہاں آ کر یہ سب کچھ دیکھا تو سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پوچھو اس بڑی بتوں سے، شاید اس نے کیا ہوگا۔ پھر لوگوں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، بت تھوڑی ہی کچھ کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تم کو یہ پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا تو تم اس سے مانگتے کیوں ہو؟ لیکن اس بات سے قوم کو اتنا غصہ آیا کہ قوم کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی آگ میں جلا دیا جائے۔ اس سٹی کا جو بادشاہ تھا، اس نے سارے لوگوں کو بلایا اور سب کے سامنے ایک بہت ہی بڑی آگ جلائی۔ یہ اتنی بڑی آگ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے لوگ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو دور سے پھینکنے کے لیے ایک منجنیق بنایا تاکہ انہیں دور سے پھینکا جا سکے۔ یہ سب اس سٹی کا سارے لوگ دیکھ رہے تھے، اور ان سارے لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کو مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے ایک کے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام، جو انہی لوگوں میں موجود تھے۔ جیسے ہی ساری تیاری پوری ہو گئی تو آگ میں پھینکے جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور آخر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ نے انہیں جلایا نہیں بلکہ ان کے لیے ٹھنڈک بن گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ یہ دیکھ کر پورے شہر کے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی پورے شہر کے لوگ کفر میں ہی ڈٹے رہے۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس وقت اس شہر پہ نمرود نامی شخص کا حکومت تھا۔ جب اس کے پاس اس معجزہ کا خبر پہنچا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے
जो जिंदा करता है और मारता है। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मैं भी मारता हूँ। फिर अपने कैदियों में से एक को जिंदा छोड़ दिया और दूसरों को मार दिया। देखा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू असल खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल के दिखा। तो वो काफिर हैरान रह गया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। वहाँ पे अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी किए और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बूतों की इबादत नहीं करते थे, बल्कि सितारों की इबादत करते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे, क्योंकि सितारे रात में ही दिखाई देते हैं। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकता हुआ तारा देखकर बोले, ये मेरा रब है। फिर जब वो छुप गया तो बोले, ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात चांद को देखकर बोले, ये मेरा रब है। जब दिन हुआ और चांद छुप गए तो बोले, ये मेरा रब कैसे हो सकता है। दिन के वक्त अपने रब के किसी को ज़रूरत पड़ी तो वो क्या करेगा। इन बातों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो बोले, ये मेरा रब है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो डूब गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने के लायक नहीं है। ये सब तो मखलूक है और इनका खालिक कोई और है। मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसने ज़मीन आसमान को पैदा किया। इन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया और ईमान नहीं लाया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुँचे। मिस्र के बादशाह को एक खबर लगा कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो हसीन और जमील है। उस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका शोहर है तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा। इधर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे वही भेज दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछे तो तुम कह देना कि तुम मेरी बहन हो। उन्होंने समझाया कि इस रूहे ज़मीन पे मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं है, तो इस हिसाब से तुम मेरी दीनी बहन हो। उस बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दुआ की बरकत से बादशाह का हाथ जम गया और बुरी तरह चिल्लाने लगा। इतना चिल्लाया कि उसके सारे नौकर दौड़ कर आ गए। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गई और सोचा, अगर ये मर गया तो सब लोग सोचने लगेंगे कि इसे मैंने ही मारा है। फिर उसने निजात के लिए अल्लाह से दुआ की और बादशाह का हाथ ठीक हो गया। पर उसने फिर से वही हरकत की और उसका हाथ फिर से जम गया। ऐसा 3 बार हुआ और आखिर सारा अलैहिस्सलाम से वादा किया, अगर तुम मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओगी तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वो बादशाह ठीक हो गया। तो बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत से रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हजरा अलैहिस्सलाम को उनके साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम वापस आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर वापस फ़लस्तीन चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उम्र 86 साल हो गया, पर उनका कोई औलाद नहीं था। तो सारा अलैहिस्सलाम खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, आप हजरा से निकाह कर लीजिए, शायद अल्लाह उनसे कोई औलाद अता करे। अल्लाह ने हजरा अलैहिस्सलाम के जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे एक सुनसान इलाके में छोड़ दिए और वहाँ से वापस फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए। उनकी बीवी 2 बार पूछी कि आप
कैसे यहाँ अकेला छोड़कर जा सकते हैं? इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार उन्होंने पूछा, ये सब अल्लाह की तरफ से है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर देखा और कहा हाँ, और फिर वहाँ से चल दिए। जब पानी और खाना खत्म हुआ तो इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे, जिसे देख उनकी माँ हजरा अलैहिस्सलाम मदद ढूंढने के लिए करीब की पहाड़ सफ़ा पर चढ़ी, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई मदद नहीं दिखा। फिर वहाँ से नीचे आई और दूसरी पहाड़ मरवा पे चढ़ी, और इस तरह उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाई। अल्लाह को इस माँ के अपने बेटे को बचाने की कोशिश इतनी अच्छी लगी कि इस वाक़ये के 4000 साल बाद आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाते हैं। 7 चक्कर लगाने के बाद हजरा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जिस जगह इस्माइल अलैहिस्सलाम है वहीं से ज़मीन से पानी निकलना शुरू हो गया। तो उन्होंने भागती हुई आई और पानी जमा करने की कोशिश की, लेकिन ये पानी इतना तेज़ी से निकल रहा था कि वो बार बार जम कहने लगी। इसका मतलब है कि रुक जाओ। और इसके बाद हजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इसी इलाके मक्का में रहने लगे। एक दिन यमन से एक कबीला बनु जुरहम शाम की तरफ जा रहा था। यमन और शाम के दरमियान जो नॉर्मल रास्ता था उसके बीच कोई भी मक्का वाले इलाका में नहीं रुकता था, लेकिन इस बार ये कबीला मक्का के पास से गुजर रहा था तो उन्होंने आसमान में कुछ ऐसे परिंदे देखे जो हमेशा पानी के ऊपर ही पाए जाते थे, और इन परिंदों को पीछे करते करते ये लोग इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। और एक कबीला पहली बार इस इलाके में इतना पानी देखकर हैरान हो गया। इस तरह यमनी कबीला पहली बार मक्का में सेटल हो गया, और कुछ ही अरसे में मक्का और यमन के दरमियान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी बन गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से मक्का की तरफ आया जाया करते थे, लेकिन जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम 12 या 13 साल के हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखे कि वो अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी कर रहे हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से मक्का की तरफ गए और अपने बेटे से कहा, बेटे, मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं तुझे कुर्बानी कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा, जो अल्लाह का हुक्म है आप वो कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए रवाना हुए। रास्ते में शैतान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने शैतान को कंकरिया मारकर वहाँ से भगा दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शैतान को मारने का ये तरीका हर साल दुनिया के पूरे मुसलमान हज में कॉपी करते हैं। और जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेटाया तो अल्लाह ने उन्हें उसी टाइम पे रोक दिया और उन्हें इस्माइल के बजाय एक मेढा ज़बह करने को कहा, और साथ ये भी कहा, मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को आने वाले सारे उम्मत में बाकी रखूँगा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, इसे खुद भी खाओ और बाकियों को भी खिलाओ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसी एक्ट को पिछले 1400 साल से सारे मुसलमान इसी तरह कॉपी करते हैं। मतलब कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते हैं, पहला परिवार के लिए, दूसरा रिश्तेदार के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। ये इवेंट आज से 4000 साल पहले एक बाप और बेटे के दरमियान एक छोटे से गांव मक्का में पेश आया था। आज हर ईद में उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया में $1 बिलियन खर्च होती है। जैसे इंडिया में 4 बिलियन, बांग्लादेश में 5 बिलियन, दुनिया के सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया में 14 बिलियन और तुर्की में 2 बिलियन, और इसी तरह बाकी कंट्रीज में $1 बिलियन का बिजनेस होता है। कुर्बानी के इस वाक़ये के बहुत साल बाद एक बार फिर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से मक्का की तरफ आए। इस बार उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ इस सिटी में अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाए, काबा। जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस फ़लस्तीन चले गए और कुछ अरसों बाद वहीं पे फौत हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद पूरा अरब हर साल हज करने के लिए
मक्का आया करते थे और सफ़ा और मरवा पहाड़ी पे जाया करते। अरब के लोग कुर्बानी भी किया करते थे। अब 2500 साल गुजरने के बाद यहाँ के लोग बिल्कुल भूल चुके थे कि वो ये सब आखिर क्यों करते हैं, और उन्होंने काबा को बूतों से भर दिया। तो अल्लाह ने दोबारा इन्हीं में से एक नबी चुना जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ काबा के अंदर से सारी बूतों को तोड़ दिया और दोबारा सारे अरबों को याद दिलाया कि वो कौन है, उनका बाप कौन था और उनका रब कौन है। जिनके बाद पूरे अरब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन की तरफ वापस आए। आज से तकरीबन 4000 साल पहले जिस खाली और वीरान जगह पे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा गया, आज वो सिटी ऐसा दिखता है। सब्सक्राइब।